friends, welcome to the channel English with Naya. Today we shall see how teachers can participate in Pariksha Pe Charcha 2021, that is 4.0. You see, first of all, the teacher should prepare one write-up of about 1500 characters, 1500 characters. The topic is the same, that is only one topic: online education, its benefits and how it can be improved further. ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, इसके लाभ एवं इसे कैसे और बेहतर बनाया सकता है, इस विषय पर लगभग 1500 वर्णों का एक रचनात्मक आलेख प्रस्तुत करना है. So what they will do is write in a Word format, the computer, and save it, or in the mobile. Write up an article consisting of 1500 characters at the most, and the topic is online education, what are its benefits and how it could be improved. So once you write it, keep it inside your laptop or your mobile, then you can just select it, copy and paste it in the concerned box, right? So once you have done this, that is you have written one write-up, then only you start the process. Now you know how to register and log in. If you don't know, just see the description box link and my former video. The first part, you will see I have explained in Hindi to the students how to register and log in, because you can participate in this Pariksha Pe Charcha 2021 provided you are a registered member of mygov.in site. So if not, you have to register either with any social account, with one email ID or mobile number and password, or OTP. So just register and then log in. So once you log in, then it will be easy to participate. So you can see here your name will be shown there, log out tab will be there. Now as shown in the first video, if you click above that link, if you search Pariksha Pe Charcha in the Google, then this link will open, innovateindia.mygov.in, and inside just log in, because you are already registered. If not, then see the first part and register yourself. Now you can see here for the teachers, we need to see this guidelines for participant students. So the teacher, this one, guidelines for parents and teachers. Click this and read the guidelines. So I read out the guidelines for students in my first part. I also explained about the themes for the students. Now for the teachers, there is only one theme, and that I have already explained in this video itself. So you have to click only on guidelines for parents and teachers and read the instructions. Once you have done that, you can click on this red button. आप क्या करेंगे, गूगल सर्च में innovateindia.mygov.in कर सकते हैं, या परीक्षा पे चर्चा 2021. तो आपको रजिस्टर करके लॉगिन करना पड़ेगा. कैसे करना है वो आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देख सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को कैसे रजिस्टर करना है मैंने समझाया, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. उसके बाद आपको गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये जो लिंक है इस पर क्लिक करके थोड़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है. थीम जो है मैं बता चुका हूँ, हिंदी में समझा चुका हूँ, ये थीम है. तो पहले से आप 1500 वर्णों में लिख के रखिएगा, टाइप करके रखिएगा, ताकि उसको सेलेक्ट करके आप पेस्ट कर पाए.
अब ये होने के बाद ये जो लाल कलर का टैब है इस पर क्लिक करेंगे, राइट। Then you will see this sort of interface. There will be, first the students, then how the students can log in through the teachers, and then teachers and parents. तो इस प्रकार 4 बॉक्स होंगे, लेकिन हमें ये जो रेड बॉक्स हमने बनाया है आपको दिखाने के लिए। तो टीचर्स जो है वो टीचर्स, इसके नीचे लॉग इन टू पार्टिसिपेट, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो टीचर्स लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे ना। लॉग इन टू पार्टिसिपेट क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार खुलेगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है MyGov.in तो आपको रिडायरेक्ट करेगा उस साइट पे और आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी समझ लेते हैं कि आपने लॉगिन कर लिया है तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पर अपना कैपिटल में पूरा नाम लिखिएगा, फर्स्ट नेम, फादर्स नेम एंड सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम, ईमेल आईडी जो वैलिड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, राइट, जो आपने रजिस्टर किया है पहले MyGov.in वही लिखने की कोशिश कीजिएगा जिससे दिक्कत ना हो। जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट और, राइट। अभी इसमें डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, इस प्रकार फॉर्मेट होगा तो इसको आप पहले ईयर सेलेक्ट करिएगा, जैसे आपका 1989 और 1993 जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करके, देन मंथ सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, जनवरी वगैरह यहाँ से, और उसके बाद डेट सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ अपने आप आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपने सीख चुके हैं, ये हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ में। बाकी ये सब आप जानते हो। अच्छा, सब्जेक्ट टॉप जो है इसमें आप क्लिक करने से आपको सब्जेक्ट दिखेंगे, तो आप इंग्लिश, हिंदी या कोई भी आप क्लिक कर सकते हैं जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं। माइंड में टीचर के लिए तो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको टिक कर लेना है। तो अब इस प्रकार आपने डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट नोट कर लिया, उसके बाद स्कूल डिटेल्स आएगा, ठीक है। स्कूल का नाम तो आप कैपिटल में लिखिएगा। बोर्ड यहाँ क्लिक करने से आपको इस प्रकार के बोर्ड्स दिखाई देंगे। इंटरनेशनल बोर्ड है तो हर एक स्टेट का नाम होगा, अगर स्टेट बोर्ड है तो उसको सिलेक्ट कीजिए, वरना नवोदय स्कूल है तो आप CBSE नवोदय करिएगा, KV स्कूल है तो CBSE KV केंद्रीय विद्यालय ऐसे ऑप्शन आएगा, उसको कीजिएगा। CBSE गवर्नमेंट स्कूल, CBSE प्राइवेट स्कूल, तो जो बोर्ड है आपको उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सब्जेक्ट नोट हो गया, स्कूल नेम कर दिया, बोर्ड आपने कर लिया। इसके बाद एड्रेस कैपिटल में लिखिएगा, कंट्री इंडिया सेलेक्ट किया, और उसके बाद स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑब्लिक UT यहाँ सेलेक्ट करिएगा। तो फर्स्ट कंट्री होने के बाद ही स्टेट कीजिएगा, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो स्टेट में भी ऐसे ऑप्शन आएंगे, आप सेलेक्ट कर सकते, गुजरात, हरियाणा जो भी आपका स्टेट है उसको सेलेक्ट ही करना, लिखना नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो आपकी जो भी है आपका सूरत वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ आपका कोड लिखना है, ठीक है। कोड देखिए, मिस्टेक ना करें। इतना किया, वेरी इजीली यू आर रजिस्टर्ड। नाउ ओनली द थिंग इज एक्टिविटी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप पहले से लिख के रखिएगा, ठीक है, 1500 कैरेक्टर्स या वर्णों के अंदर, और उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद सबमिट, आप टाइप करना टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम सेव करने से सर्वर डाउन नहीं हो तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे और सबमिट क्लिक कीजिए। सबमिट होने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा, यू आर रजिस्टर्ड and probably you get that participation certificate also. So thank you once again. Your topic is this one, online education system, its benefits and how it can be improved further. इसके बारे में लिख के रखिएगा तो रजिस्ट्रेशन बहुत आसान रहेगा, और उसके बाद वेरी इजी फॉर्म है, उसको फिल कर सकते हैं और उसको क्लिक कर देना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।